what's that one myth that you want to bust about NEET? People think NEET is all about knowing physics, chemistry and biology. Was it always the plan to be in the top 10? To be honest, no. Initially, जब मैंने ये journey start की थी, तो what my parents said is your only game is to go into a good government medical college. Helped you to reach there? I think जब हम कोई भी mock test दे रहे होते हैं, तो lot of thoughts go into our mind. Mostly about the outcome. What was that strategy you did? Error analysis एक ऐसी चीज़ थी जो मेरे syllabus complete होने के बाद I focused majorly on. I must say there are certain chapters like I can say Animal Kingdom or Plant Kingdom. Hello everyone, I welcome you all to another episode of Champions of Akash. I'm your academic buddy Dr. Himanshi. अब मुझे देख के आप ये सोच रहे होंगे कि आज हम किससे और किस बारे में बात करने वाले हैं. Don't worry, I'll reveal the secret very soon. First thing first, let's be real. NEET 2025 was not only the test of knowledge, but the test of patience and nerves. Many of you have definitely smashed it really well. And many of my amazing students are preparing for NEET 2026. So, all my amazing future doctors out there, you will be doing dissection in your med school the way I did in my days. And let me tell you one thing, it opens the fascinating world of life sciences and you are going to see the different aspect of human anatomy. But all of you are Gen Zs, right? And you are digital natives. So today we are going to dissect the journey of one of our toppers. She did not only crack the NEET 2025, but she scored AIR 5. Yes, you are absolutely correct. I am talking about one and only Avika. So everybody, let's welcome Avika. Hey girl, how are you? Hello mom, I'm great. How are you? I'm amazing. Thank you so much for asking. So tell me, how are you feeling today? I'm feeling incredibly amazing. Right? Is the feeling same as it has been quite a few days since the result came out? The feeling has never died. Jitna overwhelming it was on Right. result day, it continues to be that overwhelming. Okay, so first thing first, Avika, how does it feel after getting AIR 5, All India topper female category, right? It feels unreal to be very honest, because you cannot anticipate ऐसी चीज़ in the 2 years of preparation. Definitely. So when that happens, it definitely feels so surreal and so great also at the same time. So when you saw your result, right, is there any emotional moment that you cannot forget for your whole life that you want to share with all of your friends out there? या जब मैंने रिजल्ट देखा तो मेरा भाई मेरे बगल में था, मम्मा सामने थी. एंड भाई पापा को कॉल कर रहा है. ही वाज कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस एंड एज सून एज आई सॉ द रिजल्ट आई स्क्रीम्ड AIR 5 and then Believe it. yeah, because it's so like a moment I was waiting for Right. 2 years to get that moment. I just screamed AIR 5 and पापा कॉल पे ही थे तो he heard it. वो literally taxi man, he's screaming and वो joy जब मैंने देखा ना कि I made my father that proud, that was something you know that made me feel really good. And उधर मम्मा ने कॉल किया नाना नानी को, मामा मामी को, and they all started crying. Like they were so emotional and so proud. Mom started crying. मैं mom को hug कर रही हूँ, मम्मा it's good, we have done it. And I feel that one moment never goes out of my memory. So, was it always the plan to be in the top 10? To be honest, no. Initially जब मैंने ये journey start की थी, तो what my parents said is your only game is to go into a good government medical college. धीरे धीरे I was stubborn. I was like, no, I want to do better. I want to top it. Go to Instelli. Yeah, exactly. But then they were like, don't take any pressure on yourself. We'll see how it unveils. But मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं हमेशा से था कि नहीं, मेरे को तो मतलब I want to give it my best. If I can, why not? But they never had any pressure on me. They're like, all you have to do is get a good college. But धीरे धीरे the scores speak for themselves and धीरे धीरे we realized कि yes, we can do better. And जैसे जैसे I got to them कि please, I really wanna go on that path and you know score what I can. So they were there with me every step of the way. They're like, we are supporting you as much you want. जो मांगोगे वो मिलेगा. Any resource, any help, anything at all. And they were for me, you know, at every point.
तो आई थिंक हाँ, बाय द एंड ऑफ नीट आई वाज डेफिनेटली एमिंग फॉर द टॉप रैंक्स. आई एम वेरी श्योर कि सब लोग जानना चाहेंगे कि कोई स्पेशल टेक्निक होती है क्या टॉप 10 में आने की? मतलब इज देयर एनीथिंग स्पेशल यू डिड टू इम्प्रोवाइज टू डू बेटर? लाइक व्हाट वाज दैट वन मंत्रा दैट यू नो एनी नीट एस्पिरेंट कैन होल्ड ऑन टू कि ओके टॉप 10 में आने के लिए मुझे ये तो करना ही है? I think one thing is be open about your preparation to your teachers and to your family. Okay. Because हम एक ऐसी एज में हैं जहाँ पे we tend to isolate ourselves and हमें लगता है हम कुछ भी बोलेंगे बड़े हमें जज करेंगे. तो वो चीज़ मेरे पास भी थी, मेरे को भी लगता था मैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए जाऊँगी they'll start judging me कि इतनी छोटी सी प्रॉब्लम के लिए क्यों इतना टेंशन में आना है. But once I stepped that barrier off and I actually talked to them, ऐसा लग रहा था कि एक burden off my head चला गया. Like anything happens, they are there for me. And वो चीज़ जब आप जानते हो तो the journey becomes a lot easier. And I have seen so many people struggle with this that they isolate themselves and emotional instability एक issue बन जाता है फिर. तो I think that's one thing you should definitely hold on to, that be open, tell about your feelings, have that safe space. So definitely we all need to understand students कि you have your teachers, you have your family with you. Go talk to them, be open with all the emotional or academic help that we needed. I think that is one thing which is going to help us to improve, right? Definitely. See, I can totally relate with you, Avika, because as a medical student मेरे parents को सच में एक टाइम पे लगता था कि ये तो एडमिशन ले ही नहीं पाएगी कॉलेज में, because I was always very talkative, very like as a cheery person. I couldn't sit for hours at that time. Everybody has this perception, right? कि एक नीट एस्पिरेंट को बहुत बोरिंग होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे 24/7 पढ़ते रहना चाहिए, स्टूडियस होना चाहिए, there must not be any social life. So what kind of student you are? What actually worked for you? And do you feel कि ऐसा ही करने से नीट एग्जाम निकलता है या हम डॉक्टर बन पाते हैं? I think everyone is wired differently and people thrive in different environments. कुछ लोग होते हैं जिनको सोशलाइज करके एनर्जी बूस्ट मिलता है एंड कुछ लोग होते हैं जिन्हें उसी सोशलाइजिंग से ड्रेन हो जाते हैं. तो अपना वो बैलेंस ढूंढना ज़रूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड सेकेंडली येस, आई वुड से देयर इज़ सम कटिंग ऑफ रिक्वायर्ड बिकॉज एवरीथिंग कम्स एट अ प्राइस. You are dedicating your 2 years to one thing which is huge. There are lakhs of students sitting for that exam and अगर आप नहीं करोगे तो कोई और कर ही लेगा. Definitely. तो कहीं ना कहीं there is some cutting off, but I am not saying कि आप सब छोड़ दो जीवन में except पढ़ाई, because that's not healthy for you as a person. हम बहुत यंग एज में हैं, अभी से इट्स नॉट लाइक कि बस चलो बैठ जाओ रूम में, देयर इज़ नो लाइफ एक्सेप्ट इट. बट आई विल डेफिनेटली से यू नीड टू फाइंड द राइट बैलेंस फॉर योर सेल्फ. अगर तुम्हें लगता है कि दिन में 1 घंटा सोशलाइजिंग करने से मेरी एनर्जी बूस्ट होती है एंड आई कैन बी सेन, देन प्लीज़ डू दैट. बट इफ़ यू फील कि वो सोशलाइजिंग यू जस्ट डूइंग फॉर द सेक ऑफ इट, कि यू नो सर्फेस लेवल पे वो बहुत अच्छी लग रही है या बहुत फन लग रही है, देन आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि कट ऑफ फ्रॉम इट. फॉर मी it was like I talked to my friends, I talked to my family, I went out also, but definitely not as much as I went before the NEET preparation time. So I tried to find that balance. Obviously 1 दिन 2 दिन में नहीं मिला, but over the months gradually मैंने अपने आप को इस हिसाब से adapt किया. Eventually consistency comes, right? You find your way, what suits you better, right? Okay, so I know your parents are also from similar field, right? Of course, parents pressurize नहीं करते हैं. Of course, they just trust you. They know you can do it, right? You will do it. But still, बच्चे अपने ऊपर ना एक hidden pressure ले लेते हैं. So, did you ever feel the same कि no, I have to do it for my parents? अगर मैंने नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, या ऐसा कभी लगा कि इसकी वजह से खुद जो हमने माइंड में hidden pressure create किया, उसकी वजह से परफॉर्मेंस में कुछ इफेक्ट आया हो? इसका डर मुझे पर्सनली डेफिनेटली लगता था, बिकॉज आई केम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे एवरीवन लुक्स अप टू माई पेरेंट्स. दे आर रोल मॉडल्स फॉर थाउजेंड्स नॉट लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स, यू नो. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि व्हाट इफ़ आई एम नॉट एबल टू लिव अप टू दैट इमेज, तो क्या हो जाएगा. तो बट आई यूज्ड टू टॉक देम आउट कि पापा मम्मा मेरे को ऐसा लग रहा है कि व्हाट इफ़ आई डोंट लिव अप टू दोज एक्सपेक्टेशंस. तो they used to said me, who said you have to live up to any expectations at all? क्यों है कोई expectations? It's your journey, you have gonna lead it. In fact, जब मैं डॉक्टर बनना चाह रही थी, both of my parents told me कि this is not an easy journey. Of course it is not, and it has not come to an end now. It's just the beginning. It's just started now, and they're saying starting से पहले भी आसान नहीं है, start करने के बाद भी आसान नहीं है. तो
they used to try to talk me out of it also. You have still a lot of time to figure out, but I was consistent कि नहीं, मेरे को तो डॉक्टर ही बनना है. तो इसलिए मैं प्रेशर ले भी लेती थी कई बार कि माई पेरेंट्स आर अमेजिंग डॉक्टर्स, देयर आर सो मेनी पीपल लुकिंग अप टू देम. बट टाइम टू टाइम वो मुझे ग्राउंडिंग देते रहते थे कि देयर आर नो एक्सपेक्टेशंस, इट्स योर जर्नी एंड यू हैव टू लिव थ्रू इट. तो आई थिंक वो प्रेशर नहीं था, इसलिए आई वॉज एबल टू गिव माई बेस्ट. Amazing, Avika. बच्चे, as a child, what is your emotion? What are you feeling that yes, you made your parents proud, right? So what exactly is that emotion that every student there must hold up to? कि yes, मुझे ये feel करना है. आई फील जो छोटे छोटे लाइन्स या फ्रेजेस हमें टीचर्स बोलते थे ना, यू डू दिस देन यू गोना फील दैट वे जब Right. नीट हो जाएगा. यू नो, मेरे को अभी भी याद है, हम ऐसे एम्स दिल्ली के पोस्टर लगा के रहते थे अपने फ़ोन के वॉलपेपर्स पे, टैबलेट्स पे. एंड जब सर उसको देख के कहते थे ना, when you're gonna go there you're gonna get goosebumps, and जब वो फीलिंग होती है और वो शब्द याद आते हैं, गॉड दैट इज़ जस्ट सो अमेजिंग. और कई बार क्या होता था, मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर आता था तो कई बार डर भी लग जाता था कि अभी तो आ गया, अब फिर लास्ट में नहीं आया तो, बिकॉज समटाइम्स यू स्कोर सो गुड देन सडनली लो, तो डर लग जाता है कि मानो नीट से पहले मेरा अच्छा आ जाए, नीट में नहीं आएगा फिर क्या होगा. एंड जब वो फाइनली आप देख लो कि यू हैव डन इट, द सेंस ऑफ रिलीफ दैट गोज ओवर टू यू, द प्राउडनेस यू सी ऑन योर पेरेंट्स फेसेस, उससे अच्छा आई हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड एनी फीलिंग इन माई लाइफ. यू नो, एक बचपन से एक बच्चे के अंदर होता है कि आई जस्ट वांट टू सी माई पेरेंट्स प्राउड ऑफ मी. Okay, they are crying, but you are still happy about it. Yeah, I was so happy that I gave them that moment. You know, एक अंदर से sense of accomplishment आती है. Right. Okay, till they were doing everything for us. Like this is the first time I have done something for Even them, if right? 1% people know me by them, now I was given a chance कि people know them by me. Avika's parents. Yeah, so I think वो एक छोटी सी चीज़ कि 10 लोग भी उन्हें मेरे नाम से जानते हैं ना, तो अंदर से ऐसा लगता है yes, I did something to make them proud. Now तो Avika बच्चे pan India everybody knows that you are Avika and they are your parents, right? I can say it's an epitome of happiness. Definitely. It is, right? Yeah, and you were talking about AIIMS Delhi. So are you excited to wear that white coat? Like you are going to wear it very soon. More than excited to wear that white coat, finally get that doctor feeling. Yeah, and to get clicked in front of that AIIMS Delhi wala image and the wallpaper that you have. Because every year we do that, like students send, and I really want that picture of yours. You're going to go there and you're going to send me the picture of yours. Avika in white coat in front of the AIIMS Delhi, right? I am super duper excited for that. Okay, how's life post-NEET? Like, is it calm? Is it still a chaos? Or you are just covering up to your sleep that you missed in like last 2-3 years? It's everything at its best, to be very honest. There is no emotional tension because 2 साल में वो काफ़ी रहती है कि क्या आउटकम होने वाला है. तो first of all, I'm very much relieved from that. Secondly, there is partying, there is celebration, there's going out, there's have fun, do whatever you want. Interviews, podcast also, like motivating all your friends out there. I think वो भी एक बहुत अच्छा part होता है इसका, to give back. Yeah, What see, you learned. in college your seniors are going to help you out. It's good to have somebody. अभी तक parents थे, college में seniors होंगे. Similarly, you are their senior now. You will go to the AIIMS. They are going to follow you. Next year मैं यहीं पे बैठी होंगी with some other Avika here, who is the topper, who is going to join you there, right? That's how it works. Okay. So बच्चे अक्सर सबको एक myth रहता है. So what's that one myth that you want to bust about NEET? कि people think NEET is all about knowing physics, chemistry and biology. NEET is definitely not all about that, because if I stand here a group of 30 people, उनमें से 20 लोगों की knowledge same होगी, but if you give them a paper, but that's because आप एक पेपर को कैसे हैंडल करते हो, Exactly. that matters a lot and people usually don't focus on that. मैंने ये देखा है कि how to solve MCQs is a skill in itself. It is indeed, if you know the concept. बिकॉज आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में बैठते हो जहाँ आपके पास एक टाइम लिमिट है, और वो टाइम लिमिट ऐसी है जिसके अंदर प्रेशर आता है. Definitely. देयर आर लेंदी क्वेश्चन, समटाइम्स क्वेश्चन जो आपको हिट नहीं करेगा,
बट कई बार ऐसा होता है वो MCQ उस हिसाब से फ्रेम्ड होता है कि आपको पूरा सॉल्व करना भी नहीं होता है. जिस टीचर ने बनाया होता है दे नो कि उस बच्चे को पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए. दे फ्रेम द ऑप्शंस दैट वे. एंड आई थिंक वो स्किल जब मैं सीख गई थी ना, दैट वाज अ रियल ब्रिज फ्रॉम बीइंग completely clueless in some questions to finding my way to the answer. And a lot of people, like, लोग लेते ही नहीं है ऐसे एज अ फैक्टर कि दिस मैटर्स. आई थिंक ये एक बहुत बड़ा मिथ है. जितना PCB आना मैटर करता है उतना ही एक पेपर को हैंडल करना मैटर करता है. लाइक वी से कि सिर्फ प्लान बनाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको सक्सेसफुली कैसे इम्प्लीमेंट करना है, दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टास्क, राइट. एज यू आर सेइंग अविका बच्चे के yes, you understood the art of handling the MCQs, right? What helped you to reach there? Because I'm very sure सबको curiosity होगी कि ये कैसे करना है, right? I'm sure अविका से सुनेंगे so they will be more confident कि okay, it has to be done that way. आई थिंक जब हम कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं तो लॉट ऑफ थॉट्स गो इनटू आवर माइंड, मोस्टली अबाउट द आउटकम. कि कितने मार्क्स आएंगे तो टीचर्स क्या सोचेंगे, पेरेंट्स क्या सोचेंगे, मेरे दोस्तों के साथ कितने आएंगे, किसी के ज़्यादा तो नहीं आ जाएंगे, कम तो नहीं आ जाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू ब्लॉक आउट ऑल दैट थॉट्स. डोंट फोकस ऑन द आउटकम. तुम्हारे पास पेपर है, ऑल यू कैन डू इज सॉल्व द पेपर एंड गिव योर बेस्ट. तो फोकस ऑन डूइंग दैट. और इनिशियली मैं क्या करती थी, मेरे को कोई क्वेश्चन में लाइक 50-50 होता था तो मैं मान लेती थी ये तो मेरा गलत है, कि जस्ट टू हैव दैट सेफ स्पेस. बट वो सेफ नहीं था, उसकी वजह से पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है. बिकॉज यू स्टार्ट काउंटिंग बैकवर्ड्स, मार्क्स कम, मार्क्स कम, मार्क्स कम, मार्क्स कम. एंड फिर आता है एक्सपेक्टेशंस. लाइक वंस यू रीच दैट लाइन जहाँ पे तुम्हें लगता है कि टीचर्स क्या सोचेंगे, अगर मेरे मार्क्स कम होते होते दिमाग में वहाँ चले गए तो बस मेरा वो पैनिक शुरू हो जाता. मेरे को एक दिन सर ने बोला, तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, ऑल यू कैन डू इज अटेम्प्ट इट. तुम्हारे को कॉन्सेप्ट आता है, जितना भी आता है, ऑल यू कैन डू इज अटेम्प्ट इट. उस समय ये क्यों सोचना कि ये गलत ही होगा. अगर तुम्हें 70% श्योर है तो वो 70% चांस है ना कि वो सही हो जाएगा. तो थिंक ऑफ इट एज कि तुम्हारा सही होगा. एंड इनिशियली वो बहुत मुश्किल होता है because you have that constant fear in your mind. बट धीरे धीरे आई ट्राई टू शट ऑफ माई ब्रेन. मैं बोला नहीं, मेरा तो सही है, मैं तो कर रही हूँ, मेरा सही होगा क्वेश्चन, मेरा क्यों गलत होगा क्वेश्चन. एंड दैट रियली हेल्प. मतलब अगर मुझे 7 क्वेश्चंस में डाउट होता था और अगर मैं मान लेती थी कि वो सही है तो आई यूज्ड टू डू बेटर, बिकॉज मेरा दिमाग इज ओनली फोकस्ड ऑन गेटिंग इट राइट. रॉन्ग इज नॉट एन ऑप्शन देयर. तो आई थिंक एग्जैक्टली. तो जब तुम फोकस पॉजिटिव थॉट्स पे करोगे देन पेपर में पैनिक सिचुएशन वुड वेरी अनलाइकली सा हो जाएगा कि तुम्हें ऐसी कोई सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी. टाइम लगेगा बट इट्स डेफिनेटली रीचेबल. There would have been certain instances जहाँ पे you must have done certain mistakes. कि हर टेस्ट में तो हम टॉप नहीं करते हैं. देयर आर सर्टेन चैप्टर्स, देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जहाँ पे हम लोग थोड़ा लैक करते हैं टाइम टू टाइम, राइट. सो how did you rectify those mistakes? Okay, what was that strategy you did at that time? एरर एनालिसिस एक ऐसी चीज़ थी जो मेरे सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आई फोकस्ड मेजरली ऑन, बिकॉज उसके बाद से आई स्टार्टेड गिविंग फुल सिलेबस मॉक टेस्ट डेली. I was giving one full syllabus mock test at least from December or January. Okay. And my teachers at Takash used to make sure कि मैं उनको पूरा analysis भेज रही हूँ daily to daily. And उससे मैं फिगर आउट करती थी कि कौन से टॉपिक्स मेरे को क्लियर नहीं है, बिकॉज आई हैव स्टडीड फॉर 2 years नाउ. जो कॉन्सेप्ट्स होंगे दे आर बिल्ट, जो नहीं होंगे वो गलती में जा रहे थे. तो आई यूज्ड टू फोकस ऑन कि आई एम अटेम्प्टिंग वन पेपर. फिर मैं उसमें से एक लिस्ट निकालती थी कि ये टॉपिक्स या ये चैप्टर्स में मैं बार बार गलती कर रही हूँ. फिर एट द एंड ऑफ द वीक मैं प्रॉपरली उनको स्क्रैच से पढ़ना शुरू कर देती थी. बिकॉज व्हेन यू हैव आइडेंटिफाइड कि 180 क्वेश्चंस में से ये 5-6 टॉपिक्स तो मैं ट्रबल कर रहे हैं, तो उस ट्रबल को देन एंड देयर ख़त्म कर लेना चाहिए, रादर देन लिंगरिंग ऑन एंड थिंकिंग कि कोई बात नहीं, मॉक टेस्ट करते जाएंगे, वी विल फाइंड द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. वो अप्रोच गलत है. There are certain chapters like animal kingdom or plant kingdom. In botany there is morphology of flowering plants. So कई बार ऐसे rote learning chapters भी होते हैं या ऐसे conceptual topics होते हैं जिससे बच्चे हमेशा बहुत भागते हैं. और especially animal morphology. Definitely, मैं भी उसी कैटेगरी से हूँ. So did you like animal morphology? Definitely not. ऐसे टॉपिक्स पे भी मतलब क्या उनको इग्नोर कर दे, लास्ट में पढ़ें या रेगुलरली उन पे डिस्कशन करते रहे, मतलब व्हाट शुड बी डन कि कैसे इन चीज़ों को हम टैकल करें, मतलब बच्चे बिल्कुल जानना चाहेंगे. आई थिंक 2 साल में आप एक यूनिफॉर्म लेवल पे पढ़ाई करते हो, बिकॉज आपके पास एक यूनिफॉर्म पेस पे सिलेबस चल रहा होता है. यू कांट गिव 2 months टू अ चैप्टर एंड देन 2 days टू अनदर वन. इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. वो नहीं होने वाला है. तो
ऐसा हो सकता है कि उस यूनिफॉर्म पेस में यू आर एबल टू एक्सेल सम चैप्टर्स बट कुछ चैप्टर्स रह जाएंगे। तो मेरा मानना ये, जब आप फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दोगे तो यू वुड नो कि कौन सी चीज़ आप एनालाइज कर पा रहे हो। व्हेन यू हैव टन्स ऑफ चैप्टर्स तो दिमाग को पता चल जाता है कि हाँ, इस बारे में तो सोच पा रही हूँ, कुछ तो क्लिक भी नहीं करता। देयर आर अ लॉट ऑफ चैप्टर्स जो बिल्कुल ऐसे वैनिश से हो जाते हैं दिमाग से। तो उनके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग इज़ कि आइडेंटिफाई करके एक्सेप्ट कर लो कि नहीं आते। एक कांस्टेंट होप रहता है, नहीं अगला टेस्ट आएगा, कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे। वो फियर हटा दो, नहीं होंगे। जब नहीं आ रहा है तो नहीं होंगे। मुझसे भी नहीं होते थे, किसी से नहीं होते, एवरीवन हैज़ दोज चैप्टर्स। तो एक बार मान लो नहीं आता चैप्टर, देन अपने टीचर को अप्रोच करो कि ये टॉपिक्स में मेरे को बहुत दिक्कत आ रही है। एंड उससे पहले मैं करती थी, मैं एक क्विक रिविजन खुद ले लेती थी, बट कई बार होता है कि कॉन्सेप्ट ही वैनिश हो गया है, वो अच्छे से कभी आया ही नहीं था। तो तब अपने टीचर्स को अप्रोच करो खुल के कि मैम सर ये टॉपिक नहीं आ रहा है, मेरे को वापस एक्सप्लेन करो। एंड आकाश में दे वर वेरी फ्रेंडली विद मी। मतलब मैं जब भी जाती थी दे वर लाइक आओ अभी साथ के साथ, दे वर ऑलवेज देयर फॉर मी। तो आई थिंक वो कांस्टेंट कि चेकलिस्ट बना के उसको क्लियर ऑफ करते रहोगे। आई थिंक यू शुड नो कि मुझे किन टॉपिक्स पे काम करना है, व्हाट आर माई राइट, यू शुड नो व्हाट इज माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट, व्हाट इज माई वीकनेस, तभी जाके वी कैन इम्प्रोवाइज एंड वर्कआउट। बच्चे को अक्सर एक डाउट और रहता है, जैसे कि 12th में जब हम लोग का सिलेबस खत्म हो जाता है, देन कि what should be the strategy of a topper to revise the syllabus of 11th class? How did you revise your 11th? I used to focus on trying to see कि कितना मेरी core memory में आ गया है और कितना नहीं आया है। Like physics was one of my strong suits. मेरे को formulas and approaches ज़्यादा नहीं भूलती थी मैं। तो मैं कई बार टेस्ट में ट्राई करती थी कि क्या चीज़ मुझे नहीं आती है, I'll just read that and see कि क्या मैं बचे हुए पार्ट में कॉन्फिडेंट इनफ हूँ या नहीं हूँ। इसलिए जब मैं लास्ट में टेस्ट देती थी ना, तो मुझे उतना डर नहीं लगता था कि मुझे कुछ भी याद नहीं आएगा या मुझे कोई भी फॉर्मूला स्ट्राइक नहीं करेगा। तो मैं थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करके रखती थी कि मैं कभी 2-3 टॉपिक्स छोड़ देती थी। आई जस्ट ट्राई टू सी कि मैं क्वेश्चन कर पा रही हूँ या मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो अगर आप कुछ टेस्ट ऐसे दे देते हो तो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ओके आई हैव स्टडीड, ऐसा कि अगर मैं उसको काफ़ी टाइम तक नहीं भी पढ़ी हूँ, आई एम एबल टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस। सेकेंडली, जब आपका रिवीजन चल रहा है, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को और स्ट्रॉन्ग करने की जगह वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करो। तो वन बिग थिंग दैट डेफिनेटली हेल्प्ड इन रिविजन वाज द NCERT बूस्टर प्रोग्राम। Once we were done with the syllabus, that program was started and within around 2 months हमें सारा NCERT का थरो रिविजन आकाश के थ्रू ही मिला था। एंड आई थिंक एक टीचर्स की गाइडेंस से बेटर कुछ नहीं होता। एब्सोल्युटली, दे पिन पॉइंट एवरीथिंग यू नीड टू डू एंड एक क्लियर गाइडेंस कैन गो अ लॉन्ग वे। एक बच्चे के दिमाग में सबसे ज़्यादा चीज़ होती है कन्फ्यूजन, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कब करें। तो वो प्रोग्राम ने रियली मेरे लिए पिन पॉइंट कर दिया था कि क्या करना है। उसके अलावा हमें नो योर NCERT एंड NCERT मैप्स वाले बुक्स मिल गए थे, तो उसी से मैं ट्राई करती थी सारा NCERT रिवाइज कर लूँ, बिकॉज इट वाज बेसिकली कवरिंग एवरी लाइन ऑफ NCERT एंड नीट इज़ प्राइमरीली रिवॉल्विंग अराउंड NCERT। तो फोकसिंग ऑन दैट रियली हेल्प मी। आई थिंक पैकेजेस वगैरह के लिए मुझे कभी इधर उधर नहीं भटकना पड़ा। Okay, like if you have to recommend any good to go study material, right, or a combo of it, what it would be? फॉर योर डेली स्केड्यूल, जब आप 2 साल पढ़ाई कर रहे हो, तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आकाश के सारे मॉड्यूल्स अलॉन्ग विद मोमेंटम बूस्टर शुड बी सॉल्व। दैट वुड गिव यू अ कंप्लीट क्लैरिटी ओवर द चैप्टर यू आर डूइंग, बिकॉज सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। But when you're doing your revision, I would definitely suggest do know your NCERT and NCERT maps, because those are more centered on NCERT, so that would feel more NEET-like. So I think वो उस समय should be preferable. Along with that, test series will be going on at every time, so don't ignore them. Amazing. Okay, हमें पता है कि इस बार नीट का पेपर was not easy, right? Many students panicked. Few were blank also because पिछले कुछ सालों से the standard of the exam was different, right? And we are back to the pre-COVID era. पहले 2014, 2016 में ऐसा ही पेपर आता था. It was not something that we did not expect, right? But still everybody was shocked. So how did you manage your calm? I think जब मैंने पेपर खोला था तो मैंने फिज़िक्स से शुरू किया था एंड मैं मेंटली थोड़ी सी रेडी थी कि आई बी स्लो डाउन अ बिट, बिकॉज वो नीट है
everyone will be extra careful, तो स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाएगी. बट आई गॉट एक्सट्रीमली स्लो. मैं सिर्फ 20 मिनट्स में 5-6 ही क्वेश्चंस हुए थे एंड आई वाज लाइक वेट दैट्स नॉट हाउ आई डू पेपर्स फॉर द 2 years. तो आई इमीडिएटली लेफ्ट फिजिक्स एंड आई फोकस्ड ऑन कि आई ओनली हैव 3 hours टू मेक दिस राइट. ऑल आई हैव टू डू इज़ डू माई बेस्ट. जो क्वेश्चंस मेरे सामने आ गए मुझे उसे सॉल्व करना है. एंड इतना मैं अपने माइंड को ट्रेन कर चुकी थी कि डू नॉट थिंक अबाउट द आउटकम, डू वॉट यू कैन. तो इसलिए उस समय मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है. तो आई वॉज जस्ट सॉल्विंग एंड सॉल्विंग. बट हाँ, लास्ट 10 minutes डेफिनेटली वर टफ फॉर मी दैट डे, बिकॉज लास्ट 10 minutes में मेरे पास 3-4 क्वेश्चंस बचे हुए थे, वो भी फिजिक्स के बचे हुए थे. एंड फिजिक्स वॉज नॉट द ईजी सूट दैट डे. Definitely not this year. हाँ, तो मेरे को ये था कि विल आई बी एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस और नॉट. इसलिए मैं थोड़ी सी सोच में पड़ गई थी कि व्हाट इफ़ यू नो मैं बाहर जाऊंगी एंड एवरीवन इज स्कोरिंग गुड एंड मैं ही स्कोर नहीं कर पा रही हूँ बस. बट जो भी था फिर आई जस्ट शट इट ऑफ कि छोड़ो, जो है सो है. आई एम जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन दीज 3-4 क्वेश्चंस एंड लिटरली ऑन द लास्ट मिनट मैंने वो क्वेश्चन जस्ट मार्क किया होगा. Okay. So, any message, Avika, you want to give to your friends out there who are preparing? I think one big message I would say is please trust your teachers, please trust your family. दोनों तुम्हारे better half ही हैं. They want the best for you and I know नहीं लगता, कई बार लगता है ये लोग क्यों इतना परेशान कर रहे हैं, but please listen to them because they are your saviors for life. एंड आई नो स्टडी में किसी को कोई दिक्कत नहीं आती है बिकॉज टीचर्स ऑलवेज गाइड यू एवरी क्लास एवरी स्टेप ऑफ द वे. बट इमोशनली एज वेल एज academically try to balance your emotions. All right. Thank you, Avika, for sharing your journey with us. It was an amazing session. I'm never going to forget this time. I'm still having goosebumps after discussing your life, your experience in last 2 years, and I wish you all the best for your future. Do better. Be an amazing doctor. And don't forget us, we at Akash, right? Okay. To all the future doctors, if you have ever doubted yourself, let this episode be the reminder that everything is conquerable with the right mindset and right set of guidance. So let's gear up and prepare for NEET UG 2026. And I am your academic mentor, will be waiting for you in this room of Champions of Akash to talk to you about your journey and to inspire your juniors. Don't worry, we are definitely going to celebrate your success. All the very best, everyone.